थोड़ी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो भी जज्बात में आके ना तो इनको किसने मुफ्ती बनाया? मुझे किसने मुफ्ती बनाया ज़िशान भाई? मैं फतवे देता फिरूं? नहीं, फतवे वाली तो कोई बात नहीं है। मैं अभी भी अवैस भाई से ये कह रहा था। तो वहां पर कत्ल के फतवे और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, ये क्या आपने सुनी है कोई वीडियो ऐसी? क्या कहा है सियाल सुनिए सियाल साहब ने तो चलो ब्लंडर की है, बहुत ज्यादा सख्त बात की है, गलत बात की है, उसमें तो कोई किसी किस्म की दो राय नहीं। और वो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं। अब बेवकूफी तो हम कर रहे हैं जो जाके मिर्जाइयों की बरातों पे सफाइयां दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो कोई ऐसी वो ब्रॉड लगी है, सुन सकते हैं हम? सिर्फ आपने ही सुनी है, कोई किसी और ने भी सुनी है? क्या कहा उन्होंने? सुनिए इब्राहिम भाई, पूरी बंदा कर रहा है दरमियान जो खड़ी है। अच्छा, सबसे जो मुश्किल काम होता है ना वो होता है कि ब्लास्फेमी को डिफाइन करना। और हमने ये उलमा के मुंह से सुना हुआ है, शियों के बाद अकायद हैं जिनको अहले हदीस तौहीन कहते हैं, कभी खुदा की कभी सहाबा की। इसी तरह जो बरेलवी और जो शिया वो अहले हदीसों के बारे में और देवबंदियों के बारे में कहते हैं कि इन्होंने खुदा तो फजूल गल करेगा। मैं हुण कट के वहाना मरज़इयां दे लिटरेचर च लिखी है, नबी पाक दी गुस्ताखी दी सजा दुनियावी है ही नहीं। कोई दुनियावी सजा नबी पाक की तौहीन की है ही नहीं। मिर्जा कादियानी के बारे लिखे है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इज्जत की खातर अहमदी अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार है। इन्हां दे अगे जाके सफाइयां देंदे पियो मुसलमानों, जिन्हां दे नजदीक नबी पाक दी तौहीन दी सजा ही कोई नहीं। ਪਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾ ਡਿਫਾਈਨ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਫਿਕਾ ਮਾਲਕੀ ਖੋਲਣ, ਫਿਕਾ ਸ਼ਾਫੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜਦਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਪਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਮਦਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦਲੀਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਕਾਇਮੀ ਹੋਸ਼ੋਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਕਾਇਮੀ ਹੋਸ਼ੋਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੜੀ। ਇਹ ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਸ਼ੋਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਦਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰੇ, ਬਾਦ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋਏ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ मिर्जा कादियानी की इज्जत की खातर हम अहमदी खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार है, खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार है। इस कौम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਫਤਵਾ ਪੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਆਖਣ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਨਵਾਂ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਪਈ ਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਤੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੜਕਣਾ ਹੈ, ਫੜਕ ਫੁੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਯੂਸਫੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾੜ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਸਫਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗੰਡਾਸਾ ਪੀਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਮਵਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਡ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯੂਸਫੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਂਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਤਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੀਲਾਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿਆਲ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। ਆਓ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਆ ਕੇ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੌਣ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਲ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਮਲਣਾ। ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ वजद में होश ना हो फिर भी होश रखता हूँ, गुलाम उनका हूँ लेकिन मैं बेलगाम नहीं। बेशक बंदा वजद ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? जाके अपना मिर्जा का गुलाम अहमद कादियानी डिफेंड करो जाके पहला। साडे नबी ने असी जानने किवें करना की करना है। रजब भाई रिलैक्स ਗੜੋ ਮਥੱਲੇ ਇੰਜ ਹੁਣ ਆਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? आपसे बात करनी थी तो मुझे आप लोगों से कोई बात करने का कोई जवाब नहीं है। मुझे गिला आप लोगों से नहीं है, गिला मुझे अपने मुसलमानों से है जो उनकी अब नौबत ये आ गई है कि वो उन लोगों के पास आके कटारे में खड़े हो रहे हैं कि जो ऑलरेडी इस्लाम से हारिज है। और तकलीफ भी इस बात की है कि वो जज बने हुए हैं और हम उनको आगे ये पेश कर रहे हैं, ब्लॉक कर देता है। शर्म की बात है हम मुसलमानों के लिए, अपनों के लिए, ये मैं अपनों को बोल रहा हूँ। इतनी घटिया नेचर इनकी होती जा रही है, इतने जोहला इकट्ठे होते जा रहे हैं जो समझ से बाहर है। आप लोगों से हमें कोई गिला नहीं है इस चीज का, हमारे घर के मसले जो है। अब अगर आप लोग बहुत अच्छे से बात की है, इसलिए मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। देखिए आमिर भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब हमने ब्रॉड लगाई थी आजम सैफी भाई के लिए, तो फिर मुसलमान क्यों आकर इतना उसके ऊपर बोल रहे थे? और हम आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं, हम तो जो मुसलमानों के नबी दी तौहीन गैर मुस्लिम कर रहे हैं। हम तो मानते हैं ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने मानते तुसी? बताइए कितने मानते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? प्ले करो आवाज आने दो। वो तो आप कहते हैं ना आप मानते हैं। हाँ जिस तरह से आप लोग कहते हैं। क्यों लगे आप लोग को इस्लाम से खारिज क्यों किया गया था? तो आप आज इस जगह पे बैठते। तो आमिर भाई ये आप इसलिए आपको बोला कि ये मुसलमानों में ये कसूर आप लोग का नहीं है, ये हम लोग का कसूर है कि हम लोग की नौबत ये आ गई है कि अब हम आप लोगों के पास बैठ के तो सफाइयाँ पेश करेंगे कि हमारे यहाँ कोई भी मुसलमान भाई है उससे गलती हुई है, तो सफाई आके हम आपको देंगे कि उससे गलती हुई है तो वो माफी मांग रहा है। शर्म का मुकाम हम लोगों के लिए है। वैसे इस बात से ना जितने भी आपके पास आ रहे हैं, वैसे मेरे लिए भी शर्म का मुकाम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी मेरे लिए भी शर्म का मुकाम है। मेरे साहब ये भी सुन लें,
ये मेरे लिए भी बड़ा शर्म का मुकाम है कि मैं जो है अपने अहमदियों के को कंडेम करने के लिए ब्रॉड लगा देती थी और वहां पर जो है वो मुसलमान आकर भी उनको कुछ भी कह जाते थे। ये तो आप लोगों ने वाकई में, ये तो मेरे मुंह पे चपेट पड़ी है। जब हमारे नबी की तौहीन करेंगे तो हम नहीं कहेंगे। नहीं, ये आपकी ना ट्रू सर्चर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको ये नहीं मैं मेरी बात सुन लें, आपको ब्राड ये लगानी ही नहीं चाहिए थी। ये तो हमने उस दिन भी कहा था। यार एक मिनट रुके जरा, सलीम मीर कुत्ता और एक मिनट रुके यार। SSG साहब, हमें बोलना पड़ता है ना। अच्छा, हमने ना उस दिन भी ये बात कही थी कि जो ब्रॉड आपने लगाई है ना वो आपका इंटरनल मामला है। आप लगाएं ब्रॉड, आजम सैफी से आपने जो भी करवाना है करवाएं। और आजम सैफी साहब अपनी जो है वो रख के गए हैं यहाँ पे अपना, उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ किया है मसीह मौत की तलीम के मुताबिक किया है, वो अपना व्यू दे के गए हैं। वो हमारे मुसलमान पागल हैं जो ऐसे ही यहाँ पे बैठ के वो करते रहते हैं। इंटरनल मामला था। हाँ बिल्कुल, वो आपका इंटरनल मामला है। आप आजम सैफी से जो भी करवाना चाहें, आपकी मर्जी है, आप जो भी करवाना चाहें, कोई उसमें हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब आजम सैफी ने तो बिल्कुल साफ अल्फाज में आके कहा है कि ये मसीह मौत की तालीम है, और हम भी यही कहते हैं कि ये मसीह मौत की तालीम है, मिर्जा साहब की तालीम है, ये जो आजम सैफी ने कहा है। ਉਹਨੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ। मतलब ये कि अभी सियाल भाई की बात को आप डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। सियाल भाई ने जो कहा है गलत कहा है, लेकिन सियाल भाई का पीछे हम जो देखते हैं बैकग्राउंड कि किस रीजन से उन्होंने कहा, और सियाल भाई ने माफी मांगी है, बकायदा रजू किया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी उनके खिलाफ कोर्ट में फैसला लेके जाना चाहे, अदालत में लेके जाना चाहे, लेके जा सकता है। हम बिल्कुल डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले हैं जो कि तौहीन अमीज हैं, गलत हैं, नहीं निकलने चाहिए थे। मदई मुसलमान बननगे ना, मरजाई ते मदई नहीं ना केस दे। और अगर फिर भी कोई केस लेके जाना चाहते हैं, अदालत में लेके जाए, है ना जी। मीर भाई मेरी बात सुने, अब मेरी बात करें, मेरी बात सुने। जी। आज के बाद मुझे अपने जो सोच है उसको चेंज करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल इस तरह से अगर आप देखें ना, तो आपको सोच आपको चेंज करनी चाहिए कि जो आपको आजम सैफी साहब जो व्यू दे के दे गए हैं, अपना जो मौक़िफ़ पेश करके गए हैं, अब हमारा मौक़िफ़ आपके सामने है कि हम कह रहे हैं, साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि सियाल साहब ने जो किया गलत किया, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है बाकायदा, और उसकी रिकॉर्डिंग खुद सियाल साहब की अपनी प्रोफाइल पे भी लगी हुई है, आप चेक कर सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि अगर फिर भी, जी, सियाल भाई ने अपनी प्रोफाइल पे लगाई हुई है टाइमलाइन पे, सियाल नहीं आएंगे। नहीं, सियाल भाई ने अपनी टाइमलाइन पे अपलोड की हुई है, उन्होंने माफी मांगी है कि उनके मुंह से ना, तो वो ऊपर इधर नहीं आ सकते। नहीं, वो इधर मेरे ख्याल में वो इसी वजह से नहीं आना चाह रहे कि वो अपनी ब्रांड पे, क्योंकि एक तो उन्होंने अपलोड कर दी है जो माफी उन्होंने मांगी है, दूसरा वो अपनी ब्रांड पे जो इसका एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंटरनल मामला है ये। अहमदियों का और हमारा आपस में कोई इश्तराक है ही नहीं ना, किसी भी तौर पे नहीं है, क्योंकि अहमदियों का अपना नबी है, अपनी उम्महातुल मोमिनीन है, अपने असहाब हैं, अपनी उनकी तालीम है। तो ठीक है, फिर वो अहमदी जो बोल रहे होते हैं, फिर वो आप लोगों को क्यों तड़प रहे होते हैं? आप लोग वो तो अपने नबी की बात कर रहे होते हैं। हाँ, अपने नबी की तालीम पेश कर रहे हैं ना कि सारे नबियों की तौहीन की जा सकती है, ईसा अलैहिस्सलाम की भी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज़म साहब वही तो कह के गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्ज़ामी जवाब शराबी कहा जा सकता है, माज़अल्लाह। ये मिर्जा साहब की तालीम है। आज़म साहब ने यही तो बात कही है। बहुत जबरदस्त। नहीं, अब आप आजम सैफी की, अब आप ये पूरी ब्रॉड उसके ऊपर लग रहा है, मैं 9 घंटे उसके ऊपर बोल चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे एक दफा कंफर्म कर दें कि जो मैं कहती हूँ कि जस्टिस, बराबरी, ये सब कुछ खत्म, कुछ नहीं है। नहीं, किसी एक अहमदी ने आज़म सैफी की, किसी एक भी अहमदी ने आज़म सैफी की है कि उसने ये गलत किया है, और हम इसके खिलाफ बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे, ब्रॉडन। किसी एक अहमदी ने कहा, मियाँ साहब भी आए हुए थे यहाँ पे, बड़ी तकरीर करके गए, मियाँ साहब ने कही है ये बात। मियाँ साहब यहाँ पे तकरीर तो बहुत लंबी करके गए हैं, लेकिन एक बार भी उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकला है कि मीर सलीम ये गलत कर रहा है या आज़म सैफी गलत कर रहा है। बल्कि अलीम अहमद साहब ने बाकायदा रिकॉर्डिंग करवाई है। नहीं, उस दिन वो वाकई नहीं आए, लेकिन आज ही कहा हुआ जो आए थे मियाँ साहब यहाँ पे, तो कह के गए
कि आजम सैफी साहब और सियाल साहब दोनों ने एक ही हरकत की है, जबकि मैंने बताया आपको कि आजम सैफी कह के गया कि मैंने मसीह मौद की तालीम पे अमल किया। उनकी मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपसे अपनी बात कर रही हूँ, आप मुझसे कर लेंगे? आप मियाँ साहब की ब्रॉड पे जाकर उनसे बात कर लीजिएगा उनकी। नहीं, मियाँ साहब तो हमें अपनी ब्रॉड पे लेते ही नहीं, क्योंकि हम सच बोलते हैं। सच बोलने वालों को तो कोई भी अपनी ब्रॉड पे नहीं लेता है। बोल दिया कि मेरी तो वाकई आंखें खुल गई हैं। ये बिल्कुल सही बात है, सच बोलने वालों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अब ये नहीं वाकई में मेरे साथ भी ये बहुत अच्छा किया, जज़ाकल्लाह इब्राहिम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बाकी कुछ और पूछना है आपने? मैंने तो देखने बिल्कुल खुल के बता दिया आपको। जी बाकी कुछ और पूछना है आपने? कलबस्टर, आपने बिल्कुल मेरे से बात नहीं करनी है, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है। कल को जो है आप मेरी ब्रॉड पर आकर जमात के बारे में कुछ बोलोगी तो मैं भी यही कहूंगी कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। कोई इंसाफ नहीं, कुछ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की वो वाली बात के फातिमा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसका अबू बकर भाई म्यूट करो, ए बंद करो, ए ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। कहाँ है वो आपके भाई? ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਮਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜ਼ਾਨੀ, ਬਦਕਾਰ, ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਕੱਪ ਬੈਡ ਕੱਪ ਖੇਲ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। हजरत नून आए हैं। ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ करनी है। जमातें कहती है कि बहुत सारे दोस्तों को बड़ा एतराज होता है मेरे मौक़िफ़ पे कि मैं मुसलमान भाइयों की हमायत करता हूँ, उनके मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, लेकिन अंधा नहीं हूँ। जो चीज़ मैं देखता हूँ जो गलत है उसको हमेशा ही मैं पाबंगे दोहल कंडेम करता हूँ और अपना स्ट्रेट मौक़िफ़ रखता हूँ। कानून फैसले सबके लिए बराबर होने चाहिए, उसमें कोई भी किसी को भी किसी तरह से भी कोई लेवरेज नहीं मिलनी चाहिए, कोई कोई किसी किस्म की वो क्या बोलते हैं उसको, ये एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ जब हम अपने मज़हब की बात करते हैं, मज़हब कोई भी दुनिया को उठा ले मज़हब हो, वो हमेशा ही प्यार, मोहब्बत, माफ़ी का दर्स देता है। सभी के लिए माफ़ी दी होनी चाहिए। मैं तज़किरा करता हूँ, ये ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आए हुए थे और उन्होंने पब्लिकली बीइंग अ स्टेट गेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट, जिसमें मेरे टैक्स के पैसे हैं, उनके लवाजमात को पूरा किया गया, उनको शाही प्रोटोकॉल दिया गया पाकिस्तान में, और बड़े मंच पे खड़े होके उन्होंने कहा कि बाइबल कलाम है, उसमें पोर्नोग्राफी है। अब मुझे बताइए, एक बंदा उसको पोर्नोग्राफी इस तरह से बोल रहा है, लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कानून उस पर लागू नहीं है, उस पर किसी किस्म की दफे नहीं लगती है। हम जिक्र ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। प्यारी बहन, ये एक हकीकत है। उसके साथ मेरा दूसरा मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है, जिसमें बहुत सारे हजरात ने एतराज भी किया कि पाकिस्तानी अक़लीतें जो है मजहबी तौर पे आज़ाद है। आई वाज टॉकिंग अबाउट बीइंग अ क्रिश्चियन, कि पाकिस्तान में आज़ाद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसाफ का जो पलड़ा है समटाइम्स वो कहीं और झुक जाता है, किसी और का पलड़ा जो है वो बहुत ऊपर चले जाता है। इसमें बराबरी होनी चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत होना चाहिए, इंसाफ सभी के लिए होना चाहिए। इट्स सो शॉकिंग फॉर मी कि हजरत भाई, मैं ना हमेशा यही समझती रही हूँ मतलब इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब लास्ट टाइम जब मैंने ब्रॉड लगाई ना, ये हजरत नून साहब थे जी, बहुत बड़ी ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ?
ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੂਅਲ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ नहीं पाई यार ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज औरत है। इसका लहजा आज मुनाफिक देख के ना, मुनाफिक औरत आज इसका लहजा देख के ना ये वाला। जिशान भाई कोई कमेंट प्लीज छोड़ो, गलती साडी अपनी जिशान भाई, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਟੇ ਰਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕੋ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੁੱਧੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਅੱਖੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰਦੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਬਸ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਸ ਆਦਮੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਕੁਰਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਉਹੀ ਨਾ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕੱਢਣ, ਸ਼ਦੀਦ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਬਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਮਰਜ਼ਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਬਾਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। अच्छा यूसुफ भाई पीर साहब चढ़े जो उधर लगाएं जरा, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ? ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਨੇ ਬਰਾਡ ਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਨਾ ਮੁਦਈਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਦਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਦਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਈ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ, ਰੋਣਾ ਪੀਟਣਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ 700 ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਛੜੀ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਤਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਤਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੁਣ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੈਫੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। heartbroken
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग. बहुत शुक्रिया. मैं इसलिए आया हूँ, आपसे कुछ सवालात हैं, अगर आप जवाब देंगे. मैं किसी खातून से सख्त बात करने के कायल नहीं हूँ और ज़्यादा गुफ्तगू करने के कायल भी नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बात से उनको कोई ठेस पहुँचे. सबसे पहली बात यह है कि आप तैयार हैं? मेरे सवाल बिल्कुल साफ सुथरा आप जवाब देंगे, और आप जो सवाल करेंगे मैं भी जवाब दूंगा. इस पे आप राजी हैं? जी भाई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी. बहुत अच्छी बात. पहले आप सवाल करेंगे या मैं करूं? मैं बस सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ कि मैंने लास्ट टाइम ब्रॉड लगाई जमात की तरफ, मुझे लगी कि रेड लाइन क्रॉस हुई है. आज मैंने ब्रॉड लगाई है कि मुसलमानों की तरफ से हुई है. तो क्या इसका मतलब ये है कि पिछली दफा अहमदी गायब हो गए थे, इस दफा मुसलमान गायब हो गए? नहीं, गायब नहीं हुए, आए थे, मतलब 100% नहीं. लेकिन फिर मुझे ये जवाब मिला है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे. आपको क्यों बताएं? मुझसे सवाल क्या है? क्या ये बात सही है? क्या ये इंटरनल सबका अपना अपना ज़ाती मामला है? हाँ, देख लीजिए. पहली बात यह है कि ये मामला हम में यकसा नहीं है. हम में यकसा नहीं है. हमारे यहाँ इसकी सजा है और आपके यहाँ इसकी कोई सजा नहीं. जब सजा नहीं तो ब्रोड लगा के मलामत करना अच्छी माना दारत. जी मोहतरमा, आप अच्छी तरह से जानती हैं, ये आपका जवाब हुआ कि हम में ये यकसा नहीं है. आप में कोई सजा नहीं शातमियत की, हमारे यहाँ सजा है. हमारे पास दलीलें हैं, हम उनको पेश करते हैं और आप उसको नहीं मानते, यानी आपके लोग उनको नहीं मानते कि कोई सजा नहीं है, शातमियत की कोई सजा नहीं है. अब जब सजा ही नहीं है तो ब्रोड लगा के गुफ्तगू करना माना दारत. साहिब भाई, मैं इसका जवाब दूं या फिर बस आपने दे दिया तो मैं आगे नहीं, मैं आपका सवाल तो जवाब मैंने दे दिया कि आपका हक इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आपके यहाँ सजा नहीं है. खामखा गुफ्तगू करने से क्या हासिल? जी जी बताइए. जी, मेरे नजदीक ना असकन भाई ये है कि अगर सटन से जुदा वाला नहीं भी है ना, लेकिन अल्लाह के आगे आपको जवाब दे होना होता है. और सोशल मीडिया पे जब आप इस तरह की बातें करते हो तो फिर आपको उसका भी जवाब देना होता है. नहीं, जब सवाल ही नहीं है, जब सजा ही नहीं है तो क्या मतलब? एक चीज का सजा ही नहीं है, फिर उस पर गुफ्तगू करने का क्या फायदा है मोहतरमा? आप मुझे ये बताइए. ये ऐसा कहीं नहीं ताकि उसका छोड़ दिया जाए, जितनी मर्जी वो बढ़ते जाए कोई भी. जब सजा नहीं है, और सजा तो है ना जी, सजा तो है ना, वो वाली से. कौन सी सजा है बताइए? अगर सजा है तो अल्लाह के यहाँ है सजा. दूसरा ये अल्लाह के यहाँ सजा है जी, अल्लाह के यहाँ है. अल्लाह के यहाँ क्या सजा है? देखिए मोहतरमा, एक इंसान, मैं मुझे थोड़ा मौका दीजिए. एक इंसान है, वो कर लेता है चोरी. चोर की सजा उसके हाथ काटने हैं दुनिया में. जबान से साबित कर देता हूँ मैं. यार मेरी माजरत मैं कुछ जो नौकरानी से थोड़ा सा आप सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए. अब दुनिया में मैं कर लेता हूँ चोरी. मैंने चोरी कर ली, शरान क्या सजा है? हाथ काटने हैं मेरे. अब इससे अल्लाह का सजा साकित हो गया. अल्लाह का सजा तो बाकी है, वो माफ करे, सजा दे दे, लेकिन दुनिया में मुझे सजा तो मिलेगी नहीं मिलेगी. हमारे यहाँ शातिम की दुनिया में भी सजा है. क़यामत के दिन अल्लाह का बाकी है, माफ करे या
सजा दे, वो तो एक अलग बात होगी। दुनिया में जब सजा नहीं है, इस पे ब्रॉड लगा के हम गुफ्तगू करें, क्या फायदा। बल्कि आपको मेरा जो मशवरा है आपका ये है कि आप ब्रॉड लगा के सयाल साहब के हक में बात करें कि भाई कोई सजा नहीं है, उनसे कोई बात की, अल्लाह देख लेगा, आप लोग टेंशन मत लें, क्योंकि यही शरीयत आपकी बताती है। और इसी तरह आजम सैफी ने जब गुस्ताखी की थी, आपको यही ब्रो लगाना चाहिए था कि अब देखो मुसलमानों के यहाँ तो ये सजा है, लेकिन हमें जो है आग बगोला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सजा है ही नहीं। अगर वाकईतन आप अपने लिटरेचर को मानती हैं, अगर नहीं मानती, हमारे साथ हैं इस मसले में, फिर तो एक अलग बात है। अगर आप हमारे साथ हैं फिर आप बता दीजिए कि आप इस मसले में, भले पूरे जो है अहमदियत वो तो आप उसको मानती हैं, लेकिन इस बारे में आप मुसलमानों के साथ हैं और आप ये समझती हैं कि मुसलमान जो बताते हैं सजा सरतन से जुदा, फिर आपको हक पहुंचता है। ये एक इंसाफ वाली बात है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, एक बात ठीक की है, सयाल भाई ने ठीक की है। नहीं, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब आप देना चाहेंगे या नहीं? जी जी जरूर। बताइए। मैंने आपसे यह सवाल किया कि आपके लिटरेचर में आपकी शरीयत के हिसाब से कोई सजा नहीं, तो अगर आप अपने लिटरेचर को वाकईतन मानती हैं तो आपको ब्रोड तो लगाना चाहिए, लेकिन सयाल साहब के हक में कि इनको कोई सजा नहीं देना चाहिए, अल्लाह देख लेगा। आप लोग आग बगोला मत हो जाओ, उससे गलती हुई जो भी है उनके हक में आपने दिफा करना है, ना कि गम गुस्से का इजहार करना है और ना उनको मलामत करना है, क्योंकि आपकी लिटरेचर यही बताती है। हाँ, अगर आप अपने लिटरेचर को नहीं मानती, मुसलमानों के लिटरेचर को मानती हैं, फिर आपको इस बात में, आपको इसमें मैं मुसलमानों के साथ हूं, भले पूरे में ना हूं, मैं इतनी भी गुंजाइश छोड़ रहा हूं आपके लिए। आप काबिल एहतराम है, हमारे लिए खातून है। आप इस मसले में क्या मुसलमानों के साथ हैं? आप समझती हैं कि आपके लिटरेचर में जो कुछ लिखा वो गलत है और मुसलमान इसमें बरहक हैं, तो फिर आपको हक है। जी बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। जी जी अस्करी भाई, अब ये हो जाएगा ना मसला कि जब मैं ब्रॉड लगाऊं अहमदियों के लिए, भाई देखिए, मैं भी यही बात करने जाना था, लेकिन मुझसे हो नहीं थी पानी। ये फर्क है पढ़े लिखे में जिसको दीन का नॉलेज है और जो ऐसे हम आ जाते हैं। यकीन माने मैं यही बात कर रहा था, लेकिन मुझसे इस तरह से बात लाजवाब नहीं था। मैंने कहा इसकी सजा जो है वो अल्लाह के यहाँ है, लेकिन हमें जो है ये भी समझना होगा कि जब आप पब्लिक में बात कहते हो तो फिर आपको उसको पब्लिक में क्लियर भी करना होता है। अच्छा, अब देखें, क्योंकि आपने सही जवाब नहीं दिया, सवाल मेरा ये था क्योंकि आपके लिटरेचर में कोई सजा नहीं है, आपका हक बनता है, अगर आप वाकईतन अपने लिटरेचर के फॉलोअर हैं, सही, आपका हक ये बनता है कि आप ब्रॉड इसलिए लगाएं जिन्होंने शातमियत की कि देखें अल्लाह सजा दे देगा। आप लोगों को गम गुस्से का इजहार नहीं कर लेना चाहिए, इंसान है, उससे गलती, जो भी अच्छी बात है आप कर सकती हैं, लेकिन हक में, क्योंकि सजा है नहीं। या ये कि मुसलमानों के अगर आप साथ हैं, फिर आपको हक है कि उसके खिलाफ बात करें, उसके सजा के बारे में बात करें, मुसलमानों से राय ले लें। अब दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि दुनिया में एक बात की, दुनिया में क्लियर करना होगा। क्या क्लियर करना होगा? सजा है ही नहीं। अल्लाह खैर सल्लाह, क्लियर क्या करना होगा? अब मैं भाई देखें, ये ब्रॉड जो है ना, मैं यहाँ पर मैंने पढ़ा है। मेरी बात पूरी। मैं अपनी आखिरी बात ये करना चाहता हूँ आपके सामने, आप मेरी बातों को सोचें, देखें। मैं बार बार वही सवाल नहीं दोहराऊंगा जिसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, शायद आप देना नहीं चाहती, तो कोई मसला नहीं। देखिए, हमारा जो मामला है, मैं कोशिश कर रही हूँ, आप बात करेंगे तो मैं दूंगी फिर। नहीं, मैंने तो सवाल कर लिया, 2-3 मरतबा दोहरा लिया। आपने यही कहा कि अल्लाह सजा दे देगा, ठीक है, अल्लाह सजा दे देगा। जवाब जी, अगर आप देना चाहते, मेरी बात सुने ना जाहिद भाई, मेरी बात सुने। मैं जज नहीं हूँ यहाँ पर, हम लोगों में से कोई भी जज नहीं है।
ब्रॉड लगाने के लिए ये जो बात हुई है ना कत्ल की और ये वो सरतम से जुदा, ये कोई बात नहीं हुई है। हम किसी को भी फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, ना ही आपके तरीके से वो अलाउ है, वो एक बाकायदा मुकदमा होता है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही थी कि आप लोग इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। आया कि आप लोग इसको अनजस्टिफाइबली उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे, या फिर आप इसको कहेंगे कि हाँ ये गलत हुआ है। अच्छा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सजा की तो बात तब होगी जब मैं जज लगी होंगी यहाँ पे। नहीं, बात यह है कि मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, मेरा लिटरेचर क्या बताता है उस हिसाब से फिर मैं बात करूंगा ना, या सिर्फ ब्रोड लगा के उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, उसका क्या फायदा है। अब मेरा लिटरेचर ये बताता है कि जो शातिमियत करेगा उसकी सजा दुनिया में यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। दो टोक फैसला, ये हमारा फैसला है। आपका लिटरेचर ये नहीं कहता, आपका लिटरेचर ये कहता है कि कोर्ट में जाएगी बात। आप उसको नहीं सजा दे सकते, मैं नहीं दे सकती हूँ, वो एक बाकायदा प्रोसेस होता है। नहीं, वो तो ठीक है, आप सही कह रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन सजा क्या है, हद कायम कौन करेगा ये एक अलग बात है, लेकिन सजा क्या है ये एक अलग बात है। अब मिसाल के तौर पर चोर की सजा क्या है, हाथ काटना। कौन काटेगा? चोर की सजा उस वक्त है जब चोर के पास खाने के लिए नहीं, हाथ नहीं कटेंगे। नहीं, जब खाना ही नहीं होगा उसके पास, जब वो मुआशरा ही ऐसा नहीं होगा, तो फिर हमारे मुआशरे में जब तरबियत ही नहीं है तो फिर आप ये वाली सजाएं लगा ही नहीं सकते हैं। पहले तरबियत दें अपने लोगों को, उसके बाद जो है हम ये सजाएं लगाएं। नहीं, वो तो एक अलग बात है, आप जो बात कर रहे हैं अलग है। हम एक सजा की बात कर रहे हैं, एक हद की बात कर रहे हैं कि शरान हद क्या है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान को इजाजत है 4 शादी करने की। अब जरूरी नहीं है कि वो 4 करे, लेकिन कितनी इजाजत है 4 की। अब बाद में हम देखेंगे कि 4 कौन करे, ये है तीसरी बात। अब शातिम की क्या सजा है, हम बता रहे हैं कि ये है, कौन कायम करेगा ये एक दूसरा मरहला है। अब मेरी बात सुनिए, आखिरी बात मेरी ये है आपसे मोहतरमा, बहुत इज्जत के साथ, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमें जो हिदायत दी है वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी। ईमान वालो, अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची मत रखो। अब देखिए, नबी की आवाज पे ऊंची आवाज नहीं रखना। आगे सुन लीजिए, वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। जिस तरह से आप एक दूसरे के सामने जब बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपनी आवाज ऊंचे करके बात करते हैं, ये नहीं करना, ये आपने नहीं करना है। आगे अब ये थोड़ा सा म्यूट कीजिए प्लीज, ये थोड़ा सा म्यूट कीजिए, थोड़ा सा म्यूट कराइए। अच्छा, अब ये 2 बातें आपने सुन ली, आवाज हमने बुलंद नहीं करना है नबी के आवाज के साथ, और जिस तरह से हम एक दूसरे को चिल्ला करना, हालांकि गुफ्तगू हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी आवाज भी बुलंद है, कहा जा रहा है नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वैसा नहीं होगा। आगे फरमाया तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल सारे जाये कर दिए जाएंगे और तुम्हें उसका शऊर भी नहीं है। आप समझ रहे कि आपने कुछ किया ही नहीं, और पता पड़ा आपने अपने सारे आमाल गवा दिए। ये है नबी का मकाम। होता क्या था, इसका एक पस मंजर है। होता यह था कि बद्दू लोग आते थे नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए। अब उन्होंने आवाज देना शुरू कर दिया, ऐ नबी। वो जाहिर बात है, जब आप किसी को पुकारेंगे तो जाहिर बात है कुछ तो आवाज तो बुलंद होगा जोर से। मिसाल के तौर पर मैं आवाज दे रहा हूँ किसी को, खाला जी इधर आइए, ये तो जाहिर बात है मुझे थोड़ा ऊंचा तो बोलना पड़ेगा। ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं आया, बल्कि ये कहा उनको, आगे जब आप जाएंगे
आप ये देखेंगे, कहा कि भाई आप आगे बस ठीक है, इंतजार कीजिए, खुद नबी अलैहिस्सलाम बरामद होंगे। ये क्या क्या आप आवाजें लगा रहे हैं, नबी को ये आवाजें नहीं देना। दूसरा मामला जो दरपेश आया वो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम मजलिस में कोई बात कर रहे हैं, अब उस मजलिस में आपस में दो आदमी बढ़ गए, भिड़ने से मतलब लड़ाई नहीं, बल्कि वो आपस में बात भी मना किया कि नबी के मजलिस में बैठे हुए ये नहीं करना। नबी का हजरत कर लिए, वैसा हो गया, पता पड़ा इस तरह की बातें हम करें, हमारे भी अमाल ज़ाया हो जाए। हमें इस तरह की बात करनी ही नहीं है। बात है नबी अलैहिस्सलाम की, बहुत अजीम जुर्म हुआ है, हमने गुफ्तगू नहीं करना, सजा ये है। अब सजा देने वाले और हमारे मुफ्तियान, हमारे लोग मौजूद हैं, वो उसको देख लेंगे। इतनी सी बात है, हम यहाँ बैठकर बार बार वही बात करें और हमें शऊर भी नहीं, हमने कोई ऐसी तावील निकाल दी जिससे हमारे भी आमाल ज़ाया ना हो। ये है बुनियादी बात। जो समझदार मुसलमान है वो सिर्फ कहेगा कि गलत हुआ है, बस, कोई तबरीर पेश नहीं करेगा, कोई आएगा ये नहीं कहेगा, कभी भी साथ नहीं देगा अपने बाप का भी। मामला है नबी का, इसलिए मुझे इतना ही कहना है, इससे कुछ नहीं कहना। देखें अपना पीर साहब, आप बड़े अस्सलाम वालेकुम, मैं भी बात कर सकता हूँ? काफी देर का बैठा हूँ, अगर मुझे इजाजत है तो फिर। जी माजरत तस्लीम भाई, जरूर जरूर जरूर। हाँ, बहरहाल बात ये है, जो आए थे जो पीर साहब भाई, इन्होंने जो आयात पढ़ी उसमें इन्होंने बताया कि माल जाया हो जाने की तरफ इशारा है, कि ये जो सारा जो मामला है ये खुदा अल्लाह के हाथ में है। किसी की जो ब्लास्फेमी करना कुरान से ये साबित नहीं कर सके, इन्होंने एक अपना नुक्ता पेश कर दिया, उतार देंगे हम के पास हक है। यानी कि उलमा फिर खुदा हो गए जो कुरान की तालीम पर इन्होंने अमल ना किया। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਵੀ ਬੈਣ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਗੋਂਗਾ ਬੋਲੇਗਾ। इन लजीना युहुमुल्लाहु चलने दो, बंद करो, अमर भाई से पूछ ले, अज़ाबुन मुहीना। अमर भाई चलने दे, बंद करे, बंद कर दे। अबू बकर भाई कह रहे बंद कर। मुझे लगा अमर भाई भी चले गए। नहीं उत्ते आया नु चंगेज खान उत्ते चुको जरा, इसको उठा रहे चंगेज खान वहाँ बोल रहा है। चंगेज खान करने से फायदा हमें हुआ है आज। चंगेज खान भाई मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ एक बात के ऊपर, मेरी बात आ। अच्छा मैं चंगेज भाई का ना पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। चंगेज भाई तुम्हारा शुक्रिया यार, तुमने उस वक्त रोका कि सियाल जंग भाई को ऊपर ना लें, तो चंगेज भाई थैंक यू यार, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के ऊपर। और बड़ी बड़ी मुनाफकत की है ना। नहीं ठीक है, नहीं ना बहुत बड़ी मुनाफकत सेटलमेंट करने का तरीकाकार सी। नहीं नजब भाई उसकी बता वजह क्या, चंगेज खान ने ना मैं आपको छोटी बात बता देता हूँ, वैसे मैं बात कुछ पता नहीं हूँ लेकिन है कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। वाकया ये हुआ कि जब इसने ब्रो स्टार्ट की है ना ट्रूथ सर्चर ने, तो मैं और अवैस ऊपर थे, तो हुआ ये कि अवैस भाई ने इनविटेशन भेज दिया सियाल भाई को, ठीक है कि आप आएँ ऊपर आके ना, तो क्योंकि हमें इस बात का इल्म नहीं था, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था और उसको अवैस को भी इस इल्म शायद नहीं होगा कि सियाल भाई ने आमिर भाई के बरोड के ऊपर आके ना तो माफ़ी वगैरह जो था वो कर लिया हुआ था। तो मैंने कहा कि सियाल भाई नीचे आ गए हैं तो ऊपर उठा लें, तो चंगेज़ खान नीचे से बैठा हुआ था मेरे साथ ही बरोड के ऊपर, कहता है ज़िशान साहब तुहानू कोई जल्दी है, सबर कर लो, चुक लैने इन्होंने उत्ते, ठीक है। तो ये इसके अल्फाज थे कि तुहां किसी बने जाना में तुम जल्दी है किसी बने, ठीक है ना। तो मैं उस मामले में चंगेज़ खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि चंगेज़ खान ने उस वक्त रोका और आमिर सियाल भाई को हमने ऊपर नहीं लिया, तो उस बात शुक्रिया। बाकी मैं अपना इतने मौकफ आमिर भाई तुहाडे सामने क्लीयर कर रहे हैं, सारे दे सामने क्लीयर कर रहे हैं कि सियाल झंग वाले ने बहुत वड्डा कबीरा गुनाह किया है। बेशक वो सजदे करे, मैं मेरे दिल नूं ठेस पहुंची, मेरे दिल अजारी हुई है। बेशक वो यारी दोस्ती है,
ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਨਜਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਵਨ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦਿਸ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਮੈਦਾਨ ਮਹਿਸ਼ਰ ਖੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਰਬ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। तो एक शख्स कह रहे भी हाँ हीट ऑफ द मोमेंट ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਮਖਾ ਮਤੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਈ? ਖਾਮਖਾ बेचारे ਨੂੰ कह दीजिए यह करते बहुत मेरी तकलीफ पहुंची भी। उसने एक बात कह मकसद फिर इंसाफ किसे गया ना कि उसने कोई तौहीन करनी है, कोई अल्फाज ऐसे निकल गए और वो कह रहा है कि वो मेरा ये मकसद नहीं था, गलती से मेरा हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ, बस खत्म हो गई बात। खामखा चस्के हर शख्स गलती कौन है जिहड़ा गलती तो मुबर्रा है सिवाय अल्लाह ताला दे। सुभान जात अल्लाह ताला दी। हर इंसान गलती करता है, वो करता रहता है और अगों भी करेगा, क्योंकि इंसान की फितरत से कमज़ोर है वो। इसलिए इस चीज़ को खामखा मौजू बना के मिर्जाइयों ने तो मौका मिल गया ना, चलो जी असी लेकिन मुसलमानों को काम कर देते लंबा इनू गल ही नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करो इस चीज़। मेरी कॉल आ गई सी, मैं चौहान साहब की गल सुन नहीं सकिया। चौहान भाई यह कह रहे हैं कि अगरचे तामर सियाल भाई से कोई बात इस तरह की हो गई है तो वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो डीट होने का मुजाहरा नहीं कर रहे और उन्होंने कहा है कि उनसे बहुत शान भाई अमर सियाल भाई नहीं, सियाल जंग साहिब। सॉरी मेहरबानी मनु घरों कढवाना सॉरी यार, असल च ना दिमाग घुमिया पिया, यकीन करो। मैं ट्रू सर्चर ने मेरा दिमाग बहुत घुमाया मैंने बड़ा गुस्सा आ रहा है। सॉरी आमिर भाई जी। सियाल जंग भाई तो इस वजह तो ना वो चंगे क्या उसका नाम है, तारिक चौहान भाई कह रहे हैं कि रहने दे इस बात को, जब बंदे ने माफ़ी मांग ली है तो अब उसको मुसलमानों को भी ये बात चाहिए कि उसके ऊपर तबसरा करने के बजाय ना बात को रफा दफा करे। हाँ जी बिल्कुल। नहीं उन्होंने अपने जज्बात नूं अपने करब नूं दिल च रखो। जो बंदा सामने डिगे रब को माफ़ी पे मंगता है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत नूं संसार करन दा हुक्म दिता, वो टाइम सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अबू बकर मीर भाई माइक म्यूट करो। एक औरत ने वो बदकारी की ते नबी पाक ने ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती नाल मना फरमाया साहबा ਨੂੰ कि खबरदार कोई बोलिया जिन्नी ਉਹਨੇ तौबा ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਏ, ਸਭ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। बिल्कुल अमर भाई मेरा सवाल अमर भाई हाँ नजब भाई एक मिनट, मेरा सवाल अमर भाई आपसे नहीं, ये सियाल जंग साहब से है कि ये जो क्रिश्चियन के ऊपर है, ये क्यों एक बाइबल को पकड़ के तो क्रिश्चियन के साथ डिबेट हमने शुरू कर दी। बाइबल की 24,000 जिल्दें हैं, एक बाइबल से आप उनके साथ कैसे कोई बात कर सकते हैं इस तरह की? एक तरफ वो आप चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्रिश्चियन के पीछे पड़े हुए हैं। ये तो बड़े से बड़ा कौल में दीन भी नहीं ऐसे करता, ये तो उनकी बहुत बड़ी खुद की मिस्टेक है। वो असल में कर गए हैं और मना भी पहले भी किया गया था किसी बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਿਆਲ ਕੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਸਿਆਲ। नहीं जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये बात चाहता हूँ, देखें वो लोग ना हदें क्रॉस करते हैं और वो हदें ऐसी क्रॉस करते हैं कि आम इंसान का खून खोल उठता है, ठीक है ना। तो जिस जहाँ पर हमें लग रहा हो ना, जिस जहाँ पर हमें लग रहा हो कि हमने सब्र नहीं है या हमारा खून वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें नहीं जाना चाहिए उन जगहों के ऊपर। नजफ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਨਜਫ ਉਧਰ ਨਾ ਉਸ ਗਲੀ ਲੰਘਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਹ ਲੰਘਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ, ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਗਲੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਭੌਂਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, 2 ਦਿਨ ਭੌਂਕ, 3 ਦਿਨ ਭੌਂਕ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗੋ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ USA ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਗਲੀ ਲੰਘਣਾ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਫਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਨੈਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा अभी मैं जो है ना कोशिश ये करूंगा कि जो बातें रिपीट हो चुकी हैं ना उनकी तरफ मैं ना हूँ। मेरा ख्याल है पीर अस्कानी साहब ने अभी आके जो बात कर दी है उसके ऊपर भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ अलबत्ता एक बात मैं ये कहूंगा कि सियाल साहब ने जो भी मामला किया है, किसी भी मुसलमान ने डिफेंड तो मेरा ख्याल है उनके इस अमल को नहीं किया, सब ने ये जो है वो कहा है कि उनसे जो है ना ये बड़ी गलत किस्म की बात हुई है। अलबत्ता हाँ आपसे मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा एज वाइज, मतलब आई एम वेरी सॉरी अगर आपको ये पर्सनल चीज लगे, मुझे लगता है कि आपने खलीफा राबे जो हैं उनके साथ वक्त वगैरह गुजारा हुआ है, ज़ेर तरबियत उनकी क्लासेस ली हुई हैं, ऐसे ही है? गलती से डरा गए। इंटरनल मामला है, आप लोग अपने मुस्लिम्स में बैठकर ड्रामा पे सुन तो लेना मेरी बात, सुन क्या सुनना है, वही सेम बात ही रिपीट करनी है। सुन तो लेना, नहीं मैं सेम बात रिपीट नहीं करूंगा, सेम बात रिपीट नहीं करूंगा। मैं चले अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ इफ यू परमिट मी।